دوستوں سبیحہ کے ڈیرے سے واپسی اور صوفی کی شرارتیں کہانی بہت دلچسپ اور مزے کی ہونے والی ہے۔ سب دوست اپنی اپنی سپورٹ دکھاؤ، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو۔ چلتے ہیں مزیدار ایپیسوڈ کی طرف۔ یاسر نے ان کی مدد کرنے کے حوالے سے اتنا بھی بتایا تھا کہ یہ کام اس کی ماں دادا سے چلتا آ رہا ہے۔ اندر کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، پھر شاید میرا سارا فوکس سبیحہ خاتون کی قربت حاصل کرنے کی طرف تھا، اس لیے ان چیزوں پر کبھی توجہ ہی نہیں دے پایا۔ یہ سب سوال میرے دماغ میں چل رہے تھے جن کا تفصیلی جواب صرف شادہ ہی دے سکتا تھا، کیونکہ جتنے قریب سے شادہ سبیحہ خاتون کے بارے میں جانتا تھا اتنا میں نہیں جانتا تھا۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جتنا میں سبیحہ خاتون کی ذات کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ کیا غضب کی عورت ہے اور کس کس انداز میں مل سکتی ہے، یہ سب باتیں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ باقی سبیحہ خاتون کے سیاسی اور کاروباری معاملات کے بارے میں واقعی میں اناڑی تھا۔ ہم سبیحہ خاتون اور جہازیب خان کے پاس آ کر کھڑے ہو کر مختلف ٹاپکس پر باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ 1-1.5 گھنٹے بعد میرے موبائل کی بیل بجی۔ میں نے موبائل نکال کر سکرین پر نمبر دیکھا تو صوفی کا موبائل نمبر تھا۔ میں نے کال اوکے کر کے موبائل کان کے ساتھ لگاتے ہوئے ہیلو کہا۔ نیچے کی جانب چلنا شروع ہو گیا تاکہ علیحدگی میں اطمینان کے ساتھ بات کر سکوں۔ صوفی کی افسردہ سی آواز آئی، یاسر تم کہاں ہو، گھر کیوں نہیں آ رہے، نہ تو ہی فون اٹینڈ کرتے ہو۔ صوفی کی آواز سن کر میرے اندر کچھ ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر 20 دن بعد صوفی نے ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کیا تھا، ورنہ وہ ہر بار گھر پر کال کرنے پر پاس ہوتے ہوئے بھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ پھر شاید جب میں لاہور میں تھا تب وہ کالز کرتی رہی ہوگی، مگر میں مصروفیت کی وجہ سے ایک کال نہیں کر سکا تھا۔ میں نے نخرہ دکھاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، آ گئی یاد۔ میری بات سن کر دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صوفی کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آنے لگی۔ صوفی کے رونے کی آواز سن کر میرا دل ہلک کو آنے لگا۔ میں تڑپ کر بولا، صوفی میری جان، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ ہیلو صوفی میری آواز سن رہی ہو نا؟ اس وقت میری زبان کے ساتھ میری باڈی لینگویج بھی بے چینی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس وقت کون میری جانب دیکھتے ہوئے میری باڈی لینگویج کو نوٹ کر رہا ہے۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر صوفی روتے ہوئے بولی، تم گھر کیوں نہیں آ رہے؟ میں تڑپ کر بولا، میری جان میں آج ہی آ رہا ہوں۔ تم رو کیوں رہی ہو صوفی؟ صوفی ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، بس تم جلدی گھر آ جاؤ۔ میں نے کہا، میری جان میں تو آج تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ صوفی کچھ کہنے کی بجائے مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ میں پھر سے اسے چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ پہلے تو صوفی کو پریشان حال دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا، مگر اب اس کے رونے کی وجہ مجھے معلوم پڑ گئی تھی کہ وہ صرف مجھ سے اداس ہو گئی تھی۔ میرے سے ہیلو کرتے ہی کال بند ہو گئی۔ میں نے پھر سے ہیلو کرنے کے بعد دوبارہ نمبر ڈائل کرنا چاہا، مگر کچھ سوچ کر موبائل جیب میں ڈال کر کچھ دیر وہیں کھڑے ہو کر سر کے بالوں کو نوچتے ہوئے صوفی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے خود کو کوسنے کے بعد واپس سبیحہ خاتون کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بظاہر تو ان کے پاس کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر میرا دھیان صوفی کی طرف لگا ہوا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی صوفی کے پاس پہنچ جاؤں۔ سبیحہ خاتون چند لمحے میرے چہرے کی بے چینی کو دیکھنے کے بعد بولی، یاسر کیا بات ہے؟ بے چین نظر آ رہے ہو، کس کا فون تھا؟ میں نے دیکھا فون پر بھی تم کسی سے جذباتی انداز میں بات کر رہے تھے۔ سبیحہ خاتون کی عقابی نظروں کی دل میں داد دینے ہوئے مجھے کچھ اور بہانہ نہیں سوجا۔ میں نے جھٹ سے ابو کی طبیعت ناساز ہونے کا بہانہ گڑیتی ہوئے کہا، میم وہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر شادی جھٹ سے بولا، تو تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ گھر جا کر چچا جان کو دیکھو، یہاں ہم سب ہیں نا؟ میں نے کہا، مگر وہ گلریز خان۔ جہازیب خان میری بات کاٹتے ہوئے میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، یاسر لالا شادی ٹھیک کہہ رہا ہے، تم گھر جاؤ، اس وقت گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہوگی، یہاں ہم سب ہیں، باقی اوپر والا مدد کرے گا، تم فکر مت کرو گلریز لالا کی۔ سبیحہ خاتون بھی تائید کرتے ہوئے مجھے گھر جانے کے لیے کہنے لگی، جبکہ ایک طرف گلریز خان کی حالت کو دیکھتے ہوئے میرا وہاں سے جانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا، اور دوسری جانب صوفی کی تڑپ مجھے بے قرار کیے ہوئے تھی۔ گلریز خان کے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا وہ تو اب ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے جو میرے اختیار میں تھا اس معاملے کو نپٹانے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں وہاں سے نکلنے لگا تو سبیحہ خاتون اپنے مخصوص انداز میں بولی، بچے بات سنو۔ میں نے رک کر چونک کر سبیحہ خاتون کی جانب دیکھ کر کہا، جی میم۔ سبیحہ خاتون بولی، بچے میری گاڑی میں چلے جاتا، اس میں تمہارا بیگ بھی پڑا ہے،
और हाँ, गार्ड को साथ ले जाना, वो तुम्हें घर छोड़कर वापस आ जाएंगे। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बाल झिझक बता देना। 4-5 दिन बाद सबीहा खातून का मखसूस लहजा और उसके मुंह से बच्चे लफ्ज सुनकर मुझे अजीब सा लगा। जबकि मैं चाहता तो इसे बच्चे की मां बना सकता था, मगर हमारे दरमियान ये मुआहदा तय हो चुका था कि बेतकल्लुफी सिर्फ बेडरूम की हद तक होगी। सबके सामने अदब आदाब का लिहाज रखना जरूरी है। मैं जी बेहतर मैम कहकर वहां से निकलकर गाड़ी की जानिब जाने लगा तो शादी मेरे पीछे आकर मेरे करीब आकर सरगोशी में बोला, यासिर क्या सच में चचा की तबीयत खराब है? मैंने कहा, यार तुमने खुद ही तो कहा था कि कोई बहाना बना देना। शादी मेरे बाजू पर चुटकी काटते हुए बोला, फुटी मुंह तेरा, मेरा तेरा किट के रख देता। चंगा खैर तुम जा, मैं सब संभाल लवाहेगा। मैंने कहा, यार सबीहा खातून को मेरे घर पर मत आने देना, ये ना हो कि वो अबू की तीमारदारी के लिए आ जाए और मेरा सारा भांडा फूट जाए। शादी बोला, इसकी फिक्र मत कर, वैसे भी इसको इस वक्त अपनी पड़ी है, तुम्हारे घर नहीं आएगी। मैं हम कहकर गाड़ी में बैठने लगा, जबकि शादी ने गार्ड्स को और ड्राइवर को हिदायत करनी शुरू कर दी कि घर छोड़कर वापस आ जाएं। अस्पताल से निकलकर घर जाते हुए मेरी सारी फीलिंग्स बहुत ही अजीब थीं, बिल्कुल वैसी जैसे इंडिया से लौटने वक्त होती थी। कुछ ही देर में गाड़ी गेट के सामने रुकी तो गेट पर खड़े चौकीदार ने मुझे देखते ही सलाम करके गेट खोल दिया। मैं गाड़ी से निकलकर इसे गेट बंद करने का इशारा किया और गाड़ी में रखा अपने कपड़ों का बैग निकाल अंदर लाने का कहा। गार्ड्स का शुक्रिया अदा करते हुए उनको वापस जाने का कहकर मैं गेट से अंदर दाखिल हुआ तो अंदर मौजूद गार्ड्स मुझे सलाम करते हुए मेरी जानिब बढ़े। सबसे मिलने के बाद उनका हाल अहवाल पूछकर मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो सबसे पहले भाभी और जरीना से सामना हुआ, जो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी खुशगप्पियों में मसरूफ थीं। मुझे देखते ही दोनों के चेहरों पर खुशी और साथ ही जज्बाती इमोशन भी जाहिर होने लगे। मैंने सलाम किया तो भाभी सलाम का जवाब देते हुए बोली, तुम कब आए यासिर? मैंने कहा, अभी अभी आया हूं। ये कहकर मैं अबू के कमरे की जानिब देखकर बोला, अबू भाभी कमरे में ही है। मैंने कहा, और कहाँ भाभी? भाभी बोली, जहां उनको होना चाहिए। मैं नासमझ के अंदाज में बोला, क्या मतलब? भाभी बोली, 2 दिन से जनाब गांव ही है, कहकर गए थे दुकान बेचनी है और किसी दोस्त से मिलना है। मैंने कहा, यानी वो 2 दिन से घर नहीं है? भाभी बोली, तुम्हें पता ही है, जब उनका दिल करे तभी घर वापस आते हैं, वरना चाहे हफ्ता भर घर ना आए। खैर तुम अबू से मिल लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने कहा, नहीं मैंने कुछ देर पहले खाना खा लिया है, रात को खाऊंगा। ये कहकर मैं भाभी का जवाब सुने बगैर अबू के कमरे की जानिब चल पड़ा। अबू के घर से गायब होने पर खुशी की बजाय इस वजह पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि मैंने इसे सख्ती से मना भी किया था कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुमने बाहर कदम भी नहीं रखना, मगर ना जाने कौन सा कीड़ा इसे घर नहीं टिकने देता था। मेरी ही बात का जवाब मेरे ज़मीर ने दिया, वही कीड़ा जी तुम्हें घर पर टिकने नहीं देता। जवाब सुनकर जेपत्ती हुए मैं अंदर दाखिल हुआ तो अबू बैठ के साथ टेक लगाए थे, गहरी सोच में मुब्तला। मुझे देखकर चौंक कर खुशी से उतरने लगे। अबू के साथ गिले लगकर सारे जहां का सुकून महसूस करने के बाद अबू के पास बैठकर कुछ अपनी सुनाई कुछ उनकी सुनने के बाद मैं कमरे से निकलकर बाहर आया तो सोफे पर पड़ा अपना बैग देखकर मैंने जरीना को बैग कमरे में रखने का कहा। भाभी की तरफ देखकर कहा, मैं जरा आंटी लोगों से मिल आऊं, फिर बैठकर बातें करेंगे। मेरी बात सुनकर भाभी नाक चढ़ाकर बोली, जाओ जाओ, मैं कौन सा रोकने लगी थी, वैसे भी वहां भी कोई तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहा है। भाभी की ये बात सुनकर मेरा दिल तो किया कि भाभी को 2-4 सुना दूं, मगर अभी अभी घर आया था इसलिए मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहता था। मैं खामोशी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। पीछे से भाभी ने एक और तंजिया तीर छोड़ते हुए कहा, रात के खाने का इंतजार करूं आ फिर? मैं सीढ़ियों पर रुकते हुए मोड़कर भाभी की जानिब देखकर बोला, अगर भूख हुई तो मैं जरीना को बोल दूंगा, आपको अगर नींद आ जाए तो मेरा इंतजार किए बगैर अब सो जाना। हालांकि इस वक्त दोपहर के 2 बजे थे। भाभी जानबूझकर तंजिया बातें करते हुए मुझे कुछ कहने पर उकसा रही थी। भाभी को जवाब देकर मैं इसकी बात सुने बगैर तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। लाख कोशिश के बावजूद भाभी की बातें खामखा मेरे दिमाग पर सवार होने की कोशिश कर रही थीं। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अब इसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, वरना ये रोजाना कोई ना कोई ड्रामा करती रहेगी।
राहदारी से गुजरता हुआ जब मैं दूसरे पोर्शन पर पहुंचा तो मेरे कानों में बातों की आवाज पड़ी। मैं सीढ़ियों की जानिब जाने की बजाय साइड पर होकर नीचे का मंजर देखने लगा। ड्राइंग रूम में बैठी आंटी माही गुलजेब और सूफी पर मेरी नजर पड़ी। सूफी के मौत का जायजा लेने के लिए मैं वहीं खड़े उनको देखे जा रहा था। सूफी के अलावा बाकी सब खुश असलूबी के साथ आपस में बातें कर रहे थे, मगर सूफी का चेहरा उतरा हुआ था जैसे वो काफी रो चुकी हो। चंद लम्हों में दिल ने दिल को पुकारा और अगले ही लम्हे सूफी ने पहले नॉर्मल अंदाज में ऊपर की जानिब देखा। मुझे देखने का वहम समझ इसने अगले ही लम्हे चेहरा वापस मोड़ लिया। लम्हा भर में चौंक कर दोबारा मेरी जानिब देखा और साथ ही फटी आंखों से मुझे देखते हुए दोनों हाथ चेहरे पर रख कर नाकाबिल यकीन अंदाज में मेरी जानिब देखते हुए खड़ी हो गई। आंटी की नज़र सूफी की हालत पर पड़ी तो आंटी ने पहले सूफी की जानिब देखा। जब आंटी इसकी नज़र का ताकुब करते हुए मेरी जानिब देखने लगी तो इससे पहले ही मैं फुर्ती से पीछे हिट कर पीछे कमरे की दीवार के साथ लग गया। नीचे से आंटी की आवाज़ आई, सूफी क्या हुआ मेरी बच्ची, ऊपर क्या देख रही हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मुझे दौड़ते कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि सूफी ही ऐसे बेकरारी में दौड़ी चली आ सकती है। मैं जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया, मगर मैंने पूरा दरवाज़ा बंद नहीं किया ताकि सूफी की आवाज़ सुन सकूं, बल्कि मैं खिले दरवाजे में बनी थोड़ी सी जगह आंख लगाकर बाहर देखने लगा। सूफी बदहवासी के आलम में ऊपर आकर हाथ अपने सीने पर रख कर दिल की धड़कनों को कंट्रोल करते हुए बौखलाहट में इधर उधर देखने लगी, जैसे इसकी कोई कीमती चीज़ गुम हो गई हो और इसे यकीन हो कि चीज़ यहाँ भी मिलेगी, मगर फिर भी इसे वो नज़र न आ रही हो। सूफी की बौखलाहट, इसकी तड़प, इसकी बेचैनी देखकर मुझे इस पर ढेरों प्यार आ रहा था। ना जाने कैसे खुद पर काबू किए मैं वहां छप कर इसे तड़पते हुए वीरान आंखों से चारों अतराफ देखते हुए देखे जा रहा था। चंद लम्हों बाद एक बार फिर से सूफी के दिल ने मेरे दिल की धड़कन को महसूस करते हुए इसकी नज़र का रुख कमरे के इस दरवाजे की जानिब किया जिस दरवाजे की ओट में छप कर इसे देख रहा था। दिल की निशानदेही पर बगैर दलील लिए सूफी के कदम दरवाजे की जानिब उठे वहां आ गए। मैं जल्दी से हिट कर दरवाजे के पीछे इस अंदाज में खड़ा हो गया कि अगर सूफी दरवाज़ा खोले भी तो मैं खुद ब खुद दरवाजे की ओट में छप जाऊंगा। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। जैसे जैसे दरवाज़ा खिलता गया मैं दरवाजे के पीछे दीवार के साथ सिमट कर खड़ा होता गया। सूफी ने दरवाज़ा खोलकर पहले अंदर झांका, फिर दिल के हाथों मजबूर होकर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही सूफी अंदर दाखिल हुई मैंने दरवाजे को पांव से ठोकर मार कर दरवाज़ा बंद करते हुए फुर्ती से सूफी की कमर में बाजू डालकर इसे अपने सीने से लगाकर अभी इसके पेट पर हाथ बांधने ही लगा था कि सूफी ने बिजली की स्पीड से घूमकर अपनी पोजीशन बदलते हुए अपने चेहरे का रुख मेरी जानिब करने हुए मेरे हाथों को अपनी कमर पर पहुंचा दिया। घूमते ही तो सूफी ने लम्हा भर के लिए मेरे चेहरे को गौर से देखा, फिर मुझे नहीं पता कि मेरे सीने पर कितने मुक्कों की बरसात हुई। अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट न पहनी होती तो शायद सीने की दर्द से बुलबुला उठता। सूफी निचला होंठ बाहर निकाले दीवाना वार मेरे सीने पर मुक्के बरसाती हुई बस ये कहे जा रही थी, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, कितने दिन लगा दिए, मुझे छोड़कर क्यों गए थे, क्यों क्यों कहते हुए मेरे कंधों से कमीज को पकड़कर उधर उधर सीने पर माथा रख कर बिलक बिलक कर रोने लग गई थी। इसी दौरान दरवाज़ा खुला और आंटी और माही का चेहरा नजर आया। उनको देखकर मैंने इशारे से उनको खामोश रहने का कहा। दोनों परेशानी के आलम से अंदर आई थीं, मगर जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी परेशानी खुशी में बदल गई। मेरे इशारे पर आंटी ने माही का हाथ पकड़कर आंखों से मुझे इशारा करके माही को लेकर वापस चली गईं। इस वक्त सूफी की पीठ दरवाजे की जानिब थी, इसलिए इसे आंटी और माही का एहसास नहीं हुआ। वैसे भी वो अपने होश व हवास में नहीं थी, क्योंकि ये खुशी और गम बहुत जालिम चीज़ है। दोनों में से कोई भी हद से ज्यादा मिले तो इंसान की आंखों को रोने पर लाजमी मजबूर कर देता है, यहां तक कि बंदा अपने होश व हवास तक खो बैठता है। सूफी ने दोनों हाथों से कंधों से मेरी कमीज को मजबूती से पकड़ रखा था। मैंने सूफी की कमर को बाजुओं में भींच कर पहले जोर से इसे अपने सीने से लगाकर उसके सर के बालों की चूम कर फिर उसकी कमर से हाथ बनाकर उसके कंधों को पकड़कर इसे सीने से अलग कर कि इसके कंधों को छोड़कर आंसुओं से भीगी गालों को हाथों के प्यालों में लेकर सूफी का चेहरा ऊपर करते हुए बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, लगता है मेरी जान बहुत उदास हो गई थी। सूफी हिचकियां लेते हुए बोली, मैं नहीं तुमसे बोलती,
तुम बहुत गंदे हो। मैं मुस्कुरा कर सूफी के माथे को चूसते हुए बोला, गंदा हूं इसीलिए तो तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती। सूफी बोली, इसीलिए तो तुम मुझे रुलाते हो है ना, कि तुम्हें टूट कर दीवानों की तरह चाहती हूं। मेरे प्यार का तुम नाजायज फायदा उठाते हो। मैं सूफी के गाल छोड़कर अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोला, अच्छा मुआफ कर दो, आइंदा तुमसे कभी भी इतने दिन दूर नहीं रहूंगा। सूफी बोली, तुम झूठे हो। पहले जाते हुए भी तुमने कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा, यार मजबूरी थी, मैं कौन सा शौक से गया था। मेरा तो दिल करता है हर वक्त तुम्हारे पास ही रहूं। सूफी बोली, यासिर तुम बहुत बदल गए हो। पहले वाले यासिर नहीं रहे जो मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रहता था। मैं तड़प कर अपने कान छोड़कर दोबारा से सूफी के गालों को अपने हाथों में आध कर बोला, क्या कहा? मैं बदल गया हूं? ये बात तुमने सोची भी कैसे? मेरे दिल की धड़कन सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रही है। मेरी रग रग में खून की तरह तुम शामिल हो। कोई ऐसा पल नहीं गुजरता जब तुम्हें याद ना करता हूं। रोजमर्रा के मामलात की वजह से अगर किसी काम से गया भी था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बदल गया हूं। सूफी बच्चों की तरह निचला होंठ बाहर निकाल कर बोली, बस ऐसी बातें करके खुद को सच्चा साबित करके मुझे मिला लेते हो और फिर से अपनी मनमानियां करने लग जाते हो। ये कहते हुए सूफी ने मेरे बाजू को पकड़ा तो मुझे दर्द महसूस हुआ, क्योंकि जहां पर टाके लगे हुए थे वहीं पर सूफी का हाथ था। जख्म की याद आते ही मैंने जानबूझकर उई करने लगा, मेरे बाजू पर इतनी ज्यादा चोट लगी है और तुम मेरा हाल पूछने की बजाय मुझसे लड़ रही हो। बात सुनते ही सूफी तड़प कर मेरे दोनों बाजुओं को देखते हुए बोली, कहाँ लगी है चोट? कैसे लगी? कब लगी? सूफी की हालत देखकर इस पर बेइंतहा प्यार आने लगा। चंद लम्हे पहले मुझसे रूठे हुए शिकवे कर रही थी। चोट लगने का सुनते ही सब कुछ भूलकर तड़पते हुए चोट लगने की वजह पूछने लगी। मैंने चोट लगने वाली जगह की निशानदेही करते हुए कहा, जहां तुमने हाथ रखा हुआ है वहां लगी है। सूफी जल्दी से हाथ हटाकर बाजू के काफ का बटन खोलते हुए बोली, दिखाओ मुझे कितनी चोट लगी है। मैंने कहा, यार कमरे में चलकर कमीज उतार कर दिखाऊंगा, ऐसे बाजू का कपड़ा ऊपर नहीं होना। सूफी बोली, मुझे नहीं पता, अभी दिखाओ। मैंने कहा, यार इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बस हल्का सा जख्म हुआ। सूफी बोली, मगर ये तो बताओ चोट लगी कैसे है? मैंने कहा, गाड़ी से निकलते वक्त दरवाजे में से कोई चीज लग गई, बस मामूली सा जख्म था। सूफी परेशान हाल बोली, क्या ये मामूली जख्म है? मैंने कहा, हाँ यार, मैं तो वैसे ही तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए कह रहा था। सूफी रूठने वाले अंदाज में मेरे सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, ड्रामेबाज। मैंने कहा, मैं ड्रामाबाज हूं। ये कहते हुए मैं सूफी की गर्दन के पुष्ट पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर करने हुए होंठों की तरफ जाने लगा। सूफी मेरा इरादा भांप कर शोखी से बोली, बहुत बड़े ड्रामे बन रहे हो। मैंने कहा, और तुम बहुत बड़ी कंजूस हो। सूफी बोली, मैंने क्या कंजूसी की है? मैं होठों पर जबान फेरते हुए बोला, बंदा कम अज कम खुशी के मौके पर मुंह ही मीठा करवा देता है। सूफी का जायका चुकेती ही मुझ पर नशा सा तारी हो गया। सूफी शायद मुझसे भी ज्यादा बेचैन थी। कुछ देर बाद अचानक कुछ याद आने पर सूफी मुझे पीछे धकेलते हुए बोली, हाय मैं मर गई। लोग मेरे पीछे आए थे और दरवाजा भी खुला हुआ है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन ना लो, उनको मैंने काफी देर पहले ही वापस भेज दिया था। सूफी बोली, नहीं। मैंने कहा, जब जनाब मेरे सीने में सर दिए रो रही थी। सूफी अपने होंठों पर हाथ रखकर बोली, हाय मैं मर गई। उम्मी ने मुझे देखा था। मैंने कहा, नहीं, उन्होंने मुझे ही देखा था, तुम तो मेरे आगे थी। मेरा जवाब सुनकर सूफी खुद ही झींकती हुए बोली, चलो नीचे चलो, उम्मी पता नहीं क्या सोच रही होंगी। मैंने कहा, कुछ नहीं सोच रही होंगी। जब हम रात भर कमरे में रहते थे तब भी वो कुछ नहीं सोचती थी। मेरी बात सुनकर सूफी मुझे घूरते हुए बोली, ताना दे रहे हो? मैंने कहा, शर्म करो, वो ताना दे, मेरी माँ है। सूफी मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए बोली, अच्छा अच्छा मिस्की मत लगाओ, चलो उम्मी और गिल का इंतजार कर रहे होंगे। मैं मुस्कुराते हुए सूफी के साथ कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। सीढ़ियां उतरते वक्त मेरी नजर नीचे पड़ी तो वहां सिर्फ आंटी बैठी हुई थी।
आंटी की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो आंटियों हैरानगी का इजहार करते हुए उठी जैसे अभी मुझे देख रही हूँ। शायद वो सूफी की वजह से अब से रिएक्ट कर रही थी कि इसे यही लगे कि उन्होंने अभी मुझे देखा ही नहीं। आंटी बड़ी गर्मजोशी और मोहब्बत से मुझे मिलते हुए मेरा माथा चूम कर ढेर सारी दुआएं देने लगे। मैं इधर उधर देखते हुए बोला, आंटी जी माही और गुलजेब कहाँ है? आंटी बोली, वो अभी अभी किचन में गई है। ये कहकर आंटी सूफी की जानिब इशारा करते हुए बोली, इस पगली को पागलों की तरह ऊपर भागते देखकर मैं समझ गई थी कि तुम आ गए हो, इसलिए मैंने उनको तुम्हारे लिए खाना बनाने भेज दिया। नाश्ता भी था। मैंने सुबह हल्का फुल्का किया था, इसलिए मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी, जिसका इजहार मैं आंटी से करते हुए पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। बड़े दिनों बाद घर का खाना खाने को मिल रहा है और भूख भी बहुत लगी है। आंटी मुझे बैठने का इशारा करते हुए बोली, लगता इतने दिन होटल में ही रहे हो। मैंने कहा, लाहौर में तो चौधरी साहिब के भाई के घर ही रहा हूं, मगर इस्लामाबाद जाकर होटल में रहना पड़ा। हालांकि होटल भी बहुत अच्छा था, खाना भी अच्छा था, मगर जो मज़ा घर के खाने का है वो 5 स्टार होटल के खाने का भी नहीं। आंटी बोली, हाँ ये तो है, मुझको तो वैसे ही बाहर का खाना पसंद नहीं, पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं। ये कहकर आंटी सूफी की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हें सुकून हो गया है। यासिर बेटा, जब से तुम गए हो इस लड़की ने एक दिन भी चैन से नहीं गुजारा होगा। अब आगे कहीं जाओ तो इसे भी अपने साथ ही ले जाया करो। मैंने कहा, आंटी अब फिक्र मत करें, बस कुछ दिनों तक इसका बंदोबस्त हो जाएगा, फिर अब सब सुकून से रहना। मेरी बात सुनकर सूफी मेरे बाजू पर चुटकी काटकर शर्माते हुए उठकर किचन की जानिब भाग गई। सूफी को भागते देखकर आंटी तो खिलकर हंसते हुए बोली, अब किधर भागी जा रही है? पहले तो तुम्हारा सांस रुका हुआ था, अब यासिर आया है तो उसके पास तो बैठ जाओ। सूफी मुड़कर बोली, मैं किचन में जा रही हूँ। सूफी के जाने के बाद आंटी मेरा हाल अहवाल और सफ़र के बारे में पूछने लग गई। इसी दौरान माही और गुलजेब भी आ गईं। मुझे सलाम करके गुलजेब तो वापस किचन की जानिब चली गई, जबकि माही आंटी के साथ बैठकर मुझसे हाल अहवाल पूछने लग गई। कुछ देर बाद सूफी ने माही को आवाज़ दी तो माही उठकर किचन में चली गई। माही के जाने की कुछ देर बाद सूफी आकर बैठ गई। हमारे दरमियान नॉर्मल बातें होती रहीं। मैंने उनको यही फिल्म सुनाई कि चौधरी साहिब के साथ उसके भतीजे की शादी में था, और फिर सियासी मसले की वजह से अचानक इस्लामाबाद का प्रोग्राम बनने पर चौधरी साहिब के साथ इस्लामाबाद चला गया था, इसलिए इतने दिन लग गए। 1 घंटे तक खाना तैयार हो गया। खाना हम सब ने मिलकर खाया। इस दौरान मेरी नज़रें गुलजेब के बढ़ते हुए हसन की कशिश में मुब्तला होने की कोशिश कर रही थीं, मगर मैंने 2-3 दफ़ा बातों के दौरान ही नॉर्मल अंदाज में आंखों की तसल्ली करा दी थी। गुलजेब दिन बदन गुलाब की तरह खुलती जा रही थी, और उसकी सबसे अहम वजह साफ सुथरा माहौल, अच्छा खाना पीना, अच्छा लिबास। ऐसे माहौल में तो नॉर्मल सी लड़की को पर लग जाते हैं। वो तो पहले ही हसन की मलिका थी, अब तो उसके हसन को 4 चांद लगाने वाली बात बन गई थी। इस दौरान मैंने ये बात भी नोट की थी कि गुलजेब भी कुन अखियों से बार बार मुझे देख रही थी, और जब भी हमारी नज़रें मिलते तो उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ जाती। खाना खाकर फरी हुए मोबाइल की बेल बजने लगी। बेल सुनकर सबसे पहले मेरे दिमाग में अबरा का ख्याल आया कि इसी की कॉल हो सकती है, मगर जब फ़ोन निकाल कर नंबर देखा तो जहाज़ेब खान का नंबर था। मैं समझ गया कि सबीहा खातून ने ही करवाई होगी, इसलिए मैं ओके कहकर वहां से उठकर साइड की जानिब चलते हुए कॉल रिसीव किया। दूसरी जानिब जहाज़ेब खान की बजाय सबीहा खातून की आवाज़ आई। सलाम दुआ के बाद सबीहा खातून अबू के बारे में पूछने लग गई। मैंने कहा, अबू मुझसे उदास हो गए थे, इसलिए बुखार वगैरह था। मुझसे मिलकर काफ़ी हद तक खुश हो गए थे, फिर भी उनको मेडिसिन वगैरह दी है। ये कहकर मैं गुलरेज खान की हालत का पूछने लगा, और साथ ही फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए ये भी कह दिया कि अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं आ जाता हूँ। सबीहा खातून बोली, गुलरेज खान की तबीयत अभी वैसी ही है, मैं सोच रही हूँ इसे लाहौर ले जाऊँ, वहाँ इसका बेहतर इलाज हो जाएगा। बाकी तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। अगर लाहौर जाने की ज़रूरत पेश आई तो तुम्हें कॉल कर दूँगी। मैंने साथ ही हम कहकर वही मौजू क्लोज कर दिया कि कहीं दोबारा कहने पर सबीहा खातून कह ही ना दे कि अभी आ जाओ। कॉल बंद करके मैं वापस आया तो सूफी बोली, किसकी कॉल थी?
میں نے کہا شادی کی کال تھی، حال چال پوچھ رہا تھا۔ صوفی غصے سے بولی، اتنی جلدی اداس بھی ہو گیا تھا جو 1 گھنٹے بعد ہی حال چال پوچھنے لگ گیا۔ میں ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، پردھان منتری صاحب وہ میرے ساتھ نہیں گیا تھا، چودھری صاحب اسے یہاں چھوڑ کر اس کی جگہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے، میں تو اس سے ملے بغیر ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ صوفی چڑھتے ہوئے بولی، تو پھر جاؤ مل آ جا کر، بہت اداسی چڑھی ہے، ویسے بھی تمہارے چودھری صاحب کو تم نظر آئے، وہ شادی کو چھوڑ کر تمہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی آنٹی نے صوفی کو جھاپلا کر خاموش کروا دیا، ورنہ شاید ہماری بحث شروع ہو جاتی، کیونکہ شادی کے متعلق میں کسی کی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ صوفی ہی کیوں نہ ہوتی۔ ماہی نے شوخی سے ہنسی مذاق شروع کرتے ہوئے سنجیدہ ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات کے 10 بجنے والے ہو گئے۔ سفر کی تھکاوٹ اور گلریز خان کی وجہ سے ذہنی ڈپریشن سے مجھے کافی تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے نیند کا بہانہ کر کے آنٹی سے اجازت لے کر جانا چاہا تو صوفی میرے ساتھ اوپر تک آ گئی۔ اوپر آ کر صوفی بولی، یاسر پرسوں کیا ڈیٹ ہے؟ میں نے نارمل انداز میں ڈیٹ کا بتایا اور اگلے ہی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ پرسوں تو صوفی کی سالگرہ ہے، مگر میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، اچھا یار کوئی بات نہیں، تم نے میرا دوسرا سرپرائز خراب کر دیا ہے، آج اچانک سے آ کر تمہیں سرپرائز دینا تھا اور تمہاری برتھ ڈے کی پوری تیاری کر کے تمہیں بتانا تھا۔ حالانکہ میرے دونوں ہی جھوٹ تھے، کیونکہ واپسی کا پروگرام بھی اچانک بن گیا تھا اور صوفی کی سالگرہ کا بھی میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا اس نے بروقت مجھے یاد کروا دیا۔ میری بات سن کر صوفی بولی، آرام سے رہو، آج بھی تم نے سرپرائز کم کام نہیں کیا، مجھے تمہیں اچانک دیکھ کر پتا کر میری حالت کیا ہوئی تھی، ورنہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تم ابھی اسلام آباد سے ہی نہیں نکلے ہو، رات کو ہی کسی وقت آؤ گے۔ میں نے کہا، جب تمہاری کال آئی تھی تب میں سیالکوٹ پہنچنے ہی والا تھا، اگر تمہارا رونا دھونا نہ ہوتا تو میں نے تمہیں بتانا ہی نہیں تھا کہ میں آج ہی واپس آ رہا ہوں۔ صوفی منہ بسورتے ہوئے بولی، میرے پیار کو رونا دھونا کہہ رہے ہو؟ میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ میں صوفی کی گالوں کو پکڑ کر بولا، جان تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اتنا شور کیوں بنانے لگ گئی ہو؟ شکی مزاج عورتوں کی طرح تم برتاؤ کیوں کرنے لگ گئی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ صوفی رومانوی لہجے میں بولی، یاسر میں کیا کروں؟ جب تم مجھ سے دور جاتے ہو تو نہ جانے کیوں میرا دل ڈرنے لگ جاتا ہے، مجھے عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں، جیسے کوئی تمہیں مجھ سے دور لے جا رہا ہے۔ میں بولا، میری جان دے ٹوٹے، ایک بات اپنے دماغ میں اچھے سے بیٹھا لو، یاسر کو تم سے دور صرف موت کر سکتی ہے۔ اگلے ہی لمحے صوفی نے میری بولتی بند کرتے ہوئے غصے سے کہا، خبردار جو دوبارہ ایسی بکواس کی تمہاری جان نکال کر رکھ دینی ہے۔ میں صوفی کی گردن میں بازو ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ کر بولا، تو پھر چلیں کمرے میں۔ صوفی میرے ماتھے کے ساتھ ماتھا لگا کر ناک رگڑتے ہوئے بولی، زیادہ شوخی مت بنو۔ میں نے کہا، یار اتنے دنوں بعد مل رہا ہوں، کچھ تو میرے حال پر رحم کرو۔ صوفی بولی، اس معاملے میں مجھے بے رحم ہی رہنے دو۔ میں نے کہا، یعنی برتھ ڈے گفٹ بھی نہیں ملے گا؟ صوفی ہنستے ہوئے بولی، میری سالگرہ ہے،